Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this video lecture, you are going to learn two concepts that are identified by Sigmund Freud, and these two concepts are condensation and displacements. So these concepts are identified by Sigmund Freud in his psychoanalytical theory called the interpretation of dreams, which was published in the year 1990. Freud used terms like condensation and displacement to describe the mechanisms involved in the creation of dreams. So these are two key processes, means mechanisms or essential aspects that helps in formation of a person's dream. Not only it helps in formation of a person's dream, but also it helps in interpretations of dreams as they reveal the intricate and layered nature of the unconscious mind. So how they are able to, means these two processes are able to reveal the intricate nature of a human unconscious mind, that I will talk about in this video lecture. According to Freud, dreams are manifestation of repressed desires. Repressed desires are those unpleasant emotions, impulses, thoughts, memories, conflicts which were once part of conscious mind, but after some time they are thrown away in the unconscious mind. Like for example, if a person have sexual urge, or he had painful child memories, so these are some kind of unwanted mental contents which are there in our conscious mind, but after some time these unwanted mental contents are pushed into our unconscious mind. This is called as repressed desires. रिप्रेस डिज़ायर्स एक तरीके के वो थॉट्स, मेमोरीज़ या इमोशंस या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे साथ बीत चुके होते हैं, जिनसे हम कन्फ्रंट कभी ना कभी अपनी लाइफ में कर चुके होते हैं, बट कुछ टाइम बाद हम इन्हें भूल जाते हैं। फिर ये हमारे साथ रहते हैं बट हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये स्टोर होकर रह जाते हैं एंड हमारी कॉन्शियसनेस से ये दूर होते चले जाते हैं। देन unconscious thoughts are those thoughts which are outside of present human awareness. अनकॉन्शियस थॉट्स वो थॉट्स हैं जिनके बारे में ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट स्टेट में अवेयर नहीं होते। वो ह्यूमन बींग्स की अवेयरनेस से, प्रेजेंट अवेयरनेस से बाहर होते हैं, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होकर रह जाते हैं। He emphasizes that when repressed desires, unconscious thoughts, comes to us in the form of a dream, one should understand their symbolic nature to uncover their meaning. कि जितने भी इंसान के माइंड में मल्टीपल थॉट्स आते हैं या फिर मल्टीपल मेमोरीज़ की याद आती है जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ टाइम में उनके साथ हो चुका है, यानी उनका कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों के साथ गुज़र चुका है, तो बाद में ये चीज़ें जाकर अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है एंड कलेक्टिवली ये सारी ही चीज़ें एक सिंगल ड्रीम में बार बार हमें याद आती रहती है। तो उस टाइम पर एक इंसान के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इन ड्रीम्स के अंदर जो सिंबल्स हैं उनको समझे। कहीं ना कहीं हमारी ड्रीम्स कुछ सिंबल फॉर्म करने लगती है। जब ये सारी चीज़ें सिंगल ड्रीम में जाकर कन्वर्ट हो जाएंगी तो कुछ ना कुछ सिंबलाइज करेंगी, हमें इंडिकेट करने की कोशिश करेंगी। तो इंसान के लिए समझना ज़रूरी है कि इन सिंबल्स को समझें और जो हमारे ड्रीम्स का मतलब है उन्हें कहीं ना कहीं अनकवर करने की कोशिश करें। तो ये सिंबल्स, यहाँ सिंबल्स का मतलब है हमारी ड्रीम्स कुछ ना कुछ सिंबल फॉर्म करती है इन अनकॉन्शियस थॉट्स और डिज़ायर्स से रिलेटेड। If we understand these symbols, images, emotions coming within a dream, then we gain insight
अबाउट डीपर कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें एक तरीके से पता चल जाएगा कि आखिर में हम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये ड्रीम्स हमारी सिंबल फॉर्म करने की कोशिश करती है। तो ज़रूरी हो जाता है कि इंसान के लिए इन सिंबल्स को इंटरप्रेट करना, उन्हें उनके मीनिंग को अनकवर करना। Then Freud believes that dreams are subjective, because dreams are subjective in a sense, they are highly personal, क्योंकि ड्रीम सबकी अलग होती है एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एंड इसलिए ये कहीं ना कहीं पर्सनल होती है, इसीलिए कहा गया है ड्रीम्स सब्जेक्टिव होती है। So, subjective means here highly personal, and therefore their interpretation can vary from person to person। कि ड्रीम्स के बारे में इंटरप्रेट करना पर्सन टू पर्सन के लिए वेरी करता है, डिफ़र करता है, क्योंकि हर किसी की ड्रीम अलग होती है, पर्सनल होती है, उनके एक्सपीरियंसेस से अटैच होती है, उनकी मेमोरी से अटैच होती है, इमोशन से अटैच होती है, इसलिए ये बिल्कुल पर्सनल होती है। सो दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वैल्यूएबल टूल विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स वर्किंग ऑफ ह्यूमन साइकी। Here I am talking about कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है चीज़ों को बाद में एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। So the process of compressing the unconscious materials into a densely concentrated bag of images is called condensation according to Freud। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुई रिप्रेस डिज़ायर्स, थॉट्स और मेमोरीज़ होती हैं, उन्हें कंबाइन कर लिया जाता है एंड एक कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सिंगल ड्रीम में जाकर ये कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सिंगल ड्रीम यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कंडेंसेशन का काम कर रही है, जो कि जितने भी रिप्रेस डिज़ायर्स है, अलग अलग तरीके के मेमोरीज़ है, उन्हें सिंगल ड्रीम में कन्वर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सिंगल ड्रीम एक कंसंट्रेटेड बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे एसोसिएशंस और आइडियाज़ फॉर्म करती है। तो ये सिंगल ड्रीम एक तरीके का सिंबल होता है, जो कहीं ना कहीं बाद में जाकर बहुत सारे एसोसिएशंस और आइडियाज़ को फॉर्म करने लगता है। So, in this process of condensation, multiple thoughts, ideas, or experiences are merged into a single dream, image, or symbol, and this process involves compression of various elements which are there in our unconscious mind. So, after this compression of various elements, these things try to concise all these things, and then they are able to condense these sorts of multiple ideas, experiences, or thoughts into a single form of dream. Then, unconscious materials include an image, memory, or thought, or any dream object which is converted into a single dream in this process. सो जब ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके के थॉट्स, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस जब एक तरीके से कंसंट्रेटेड होकर रह जाएंगे सिंगल ड्रीम की फॉर्म में, तो इससे क्या होगा, हमें ड्रीम्स का मतलब बिल्कुल अनक्लियर हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर एक सिंगल ड्रीम में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो हमारे लिए ये अनक्लियर हो जाएगा ड्रीम्स को समझना। So this condensation makes meaning of the dream unclear and requires analysis to uncover hidden desires or conflicts that are being expressed। अब जब हम अनक्लियर रहेंगे कि हमें आखिर में ड्रीम्स किस बात की आ रही है, हमारी ड्रीम्स का आखिर में मतलब क्या है, तो फिर हम कंपेल हो जाएंगे एनालिसिस करने के लिए कि आखिर में इन जो हिडन डिज़ायर्स जो कि आज तक हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छुपे हैं, उनको अनकवर करने की कोशिश करेंगे, हम एफ़र्ट्स लेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी जो हमारे मन में इतने दिनों से चल रहे हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं अनकवर करने की कोशिश करेंगे इस प्रोसेस के थ्रू, जिसे कंडेंसेशन कहा गया है। सबसे पहले ये सारी चीज़ें एक सिंगल ड्रीम में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड जब
सिंगल ड्रीम में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये हमारे लिए बिल्कुल अनक्लियर होगा ड्रीम्स को समझना। एंड फिर उसके बाद हम खुद से ये एफर्ट लेंगे कि आखिर में हम चीज़ों को समझें कि आखिर ये ड्रीम्स जो बार बार हमें आ रही है उनका मतलब हमारे लिए क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या है, उन चीज़ों का मतलब। एंड देन फिर हम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे मन में अब तक चलते आ रहे हैं उनको भी अनकवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से इनडायरेक्ट तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट करता है ड्रीम्स में आकर एंड कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड को रिमाइंड करवाता है। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है इनडायरेक्ट तरीके से सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्शियस माइंड के साथ। Now let's talk about displacement. Displacement means replacing something from its original position with something else. In this process of displacement, emotions of a human being are transferred or they are displaced or replaced with another fictional person or object, in which human beings unconscious mind possess tendency that they are able to transfer emotions associated with a particular dream element onto a different object or पर्सन। जैसे कि मेरे इमोशंस है तो मेरे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी ताकत है कि वो मेरे इमोशंस को किसी फिक्शनल पर्सन के इमोशन में कन्वर्ट कर देगा या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे इमोशंस को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा या रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। So, in displacement, emotions or impulses of a person are replaced on another fictional person or object. Let's take an example. For example, if someone is angry with their boss but is unable to express it directly, they may displace their anger onto a friend or family member. अब जैसे कि मेरे को मेरे बॉस पर गुस्सा आता है तो मैं अपने बॉस पर गुस्सा नहीं निकाल पाऊँगी, बट मैं अपने एंगर को डिस्प्लेस कर दूँगी तो मेरा गुस्सा मेरे किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर पर उतरेगा। तो इस प्रोसेस को फ्रॉइड की लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट कहा गया है एंड ये भी कहीं ना कहीं असेंशियल रोल प्ले करते हैं ह्यूमन साइकी को, ह्यूमन के अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए। These two processes, condensation and displacement, are two essential aspects which helps in understanding आवर अनकॉन्शियस माइंड। इन दो प्रोसेस के थ्रू हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझ सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू क्या पॉसिबल हो पाता है कि जितने भी मल्टीपल टाइप्स के थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मेमोरीज़ है, वो सारी एक सिंगल ड्रीम में जाकर कन्वर्ट हो जाती है। तो इन दो प्रोसेस के थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है अनकॉन्शियस माइंड को समझना। एंड हम ये चीज़ भी कन्फ्रंट कर पाते हैं तब कि हम अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों के साथ गुज़र चुके हैं। तो ये चीज़ हमें, यानी हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को बार बार इन चीज़ों की याद दिलाता है एंड ये सारी चीज़ें बाद में जाकर एक सिंगल ड्रीम में जाकर कन्वर्ट हो जाती है। एंड जब ये कन्वर्ट हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इस सिंगल ड्रीम को, ये जो सिंगल ड्रीम है, ये कुछ ना कुछ सिंबल फॉर्म करने की कोशिश करेगी, कुछ सिंबलाइज करने की कोशिश करेगी एंड ये सिंबल भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से लिंक्ड होंगे। ये सिंबल कुछ ना कुछ चीज़ों को एसोसिएट करते होंगे। सो थ्रू दीज प्रोसेसेस अनकॉन्शियस माइंड एक्सप्रेसेस आवर hidden thoughts, memories, feelings, conflicts and transform into a single dream. And this single dream contains symbols and these symbols too contains lot many associations. ये एक symbol ही हमारी बहुत सारी thoughts, memories, image को associate करता है। देन दीज टू प्रोसेसेस हाईलाइट्स सिम्बॉलिक नेचर ऑफ ड्रीम्स, कि जब भी ये सारी चीज़ें सिंगल ड्रीम में कन्वर्ट हो जाएंगी तो एक सिंबल फॉर्म होगा एंड वो सिंगल सिंबल बाकी सारे हमारे थॉट्स, मेमोरीज़, कॉन्फ्लिक्ट्स से एसोसिएट करता होगा। तो हमारी ड्रीम्स का सिम्बॉलिक नेचर होता है, कुछ ना कुछ इंडिकेट या सिम्बोलाइज करने की कोशिश करती है। एंड द इनडायरेक्ट वेज थ्रू दीज प्रोसेसेस इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट इनडायरेक्टली
through unconscious mind. So a conscious mind is able to communicate indirectly with unconscious mind, क्योंकि unconscious mind में जितने भी symbols फीलिंग्स होती हैं, तो ये अनकॉन्शियस माइंड इन दो प्रोसेसेस के थ्रू हमारी ड्रीम्स में ये सारे सिंबल्स या फिर फीलिंग्स को भेजने की कोशिश करता है, और ड्रीम्स के थ्रू हमारे कॉन्शियस माइंड को ऐसी चीज़ों की याद आती है जिन्हें हम बहुत टाइम पहले ही भूल चुके थे। तो इस तरीके से ये दो प्रोसेसेस एक ह्यूमन माइंड के अंदर फंक्शन करते हैं, जिसे आइडेंटिफाई किया गया सिगमंड फ्रॉइड द्वारा। Then with this video lecture ends here. Hope this video lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you.